God is good. All the time. And all the time. God is good. Hallelujah. Hallelujah. Not in a very happy mood today आज मेरा मूड अच्छा नहीं है इतना भी because someone really is trying to get into our website and hack our website and do some very dirty things trying to hurt our ministry. और ऐसा कोई व्यक्ति है जो हमारे मिनिस्ट्री को हर्ट करना चाहते हैं, गंदे की चीजों को हम लोग कर रहे हैं हमारे मिनिस्ट्री के खिलाफ. And I was really upset after doing a new one and still someone is trying to play with our websites. और नया वेबसाइट बनाने के बाद भी लोग हमारे वेबसाइट को फिर से हैक किया तो बहुत ही दुखी हूँ मैं. But it just tells how wicked man is. और ये हमें बताती है कि कितना मनुष्य गंदगी है. And that man needs to be saved. और मनुष्य लोगों को उद्धार पाने की आवश्यकता है. And they need, and only the Lord Jesus Christ can save them. और केवल यीशु मसीह लोगों को उद्धार दे सकता है. And these people need to repent of their sin and trust in the Lord Jesus और Christ. ये इन लोगों को परमेश्वर की ओर जाकर उनको पश्चाताप करना है. Well, we'll be starting again, continuing our studies in 1 John. और हमारे जो पहला योना में हम जो स्टडी करते हैं उसमें हम लगातार हम स्टडी करेंगे. And in 1 John chapter 5, we are today going to look from verse number, where did we stop? I think we stopped in verse number 5. Yes. We are going to see from verse number 6 onwards. आज हम पहला योना अध्याय 5 और वचन 6 में से हम देखेंगे आज. Is the base. That's it? Yes. Final? Yes. Verse number 6 we are going to see today. We are going to study from verse 6, 7 and maybe 8 also. और वचन 6 से लेकर हम शायद 8 तक आज हम स्टडी करेंगे. When we study these verses, we are talking about the true nature the Lord Jesus Christ is possessing. और ये जो हम वचन को जो हम स्टडी करते हैं हमें देखने के लिए मिलता है यीशु मसीह की चरित्र के बारे में. Jesus Christ was not just a God. यीशु मसीह केवल परमेश्वर ही नहीं था. He did not just come like the one true God on the earth. यीशु मसीह केवल एक सच्चा परमेश्वर होकर इस संसार में नहीं आया. But he was also man. लेकिन यीशु मसीह मनुष्य था. He was 100% God and 100% man. यीशु मसीह 100% मनुष्य और 100% परमेश्वर था. And it is very important for you and for me to know and study this subject. और ये हम सभी के लिए जानने के लिए बहुत ही आवश्यकता है जब हम स्टडी करते हैं. When you don't know that Jesus, the nature of the Lord Jesus Christ, जब आपको यीशु मसीह की चरित्र के बारे में नहीं पता चलता है, then you and I can be easily deceived by the evil one. तो हम शैतान से हम अलग इजीली आसानी से हमें धोखा दे सकते हैं. You can be easily deceived by anybody who does not believe in the Bible. लोग आपको आसानी से शब्द से लेके जा सकते हैं बाहर जो बाइबल में विश्वास नहीं रखते हैं. There are many cults today who believes certain things about the Lord Jesus Christ, but do not believe in certain other truths about the Lord Jesus Christ. जैसे बहुत सारे प्रकार के लोग हैं जो अन्य विश्वासी लोग हैं जो यीशु मसीह के ऊपर कुछ विश्वास करते हैं, कुछ चीजों को विश्वास नहीं करते हैं. And so you and I need to study the Word of God, so you and I will be grounded and rooted in the Word of God. हम सभी को परमेश्वर के वचन को स्टडी करना ताकि हम परमेश्वर के वचन में ताकि हम अंदर से डूब कर ताकि हम स्टडी कर सकें. And what we are going to study today is the true nature that the Lord Jesus possessed. और आज यीशु मसीह की दो प्रकार के चरित्र के बारे में आज हम देखेंगे. The Lord Jesus possessed the human nature and the divine nature. और हम देखते हैं यीशु मसीह का जो चरित्र जो मनुष्य का चरित्र और परमेश्वर का चरित्र के बारे में हम देखेंगे. The Lord Jesus Christ was 100% God and 100% man. यीशु मसीह 100% परमेश्वर था, 100% मनुष्य भी था. He was not just God, but he was also a man. वो केवल परमेश्वर ही नहीं था लेकिन वो मनुष्य भी था. And when we read in the Word of God, we see how the Lord Jesus Christ was man and he was also God. और जब हम बाइबल में पढ़ते हैं हमें देखने के लिए मिलता है कि कैसे परमेश्वर यीशु मसीह मनुष्य था और परमेश्वर भी था. There are certain groups of people and some religious people of different religion. They believe that Jesus Christ was a good man, but they don't believe that he was God. आज ऐसे कुछ प्रकार से लोग हैं जो विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह हाँ वो अच्छा व्यक्ति था लेकिन वो परमेश्वर नहीं था. There are some that believes that Jesus Christ was God, but he was not man. और बहुत से लोग विश्वास करते हैं कि हाँ यीशु मसीह परमेश्वर था लेकिन वो मनुष्य नहीं था. And when you believe in only one part of the Lord Jesus Christ, there comes a lot of problems.
लेकिन अगर आप केवल यीशु मसीह की एक हिस्से में अगर आप विश्वास करते हैं, बहुत सारी समस्याएं आएंगी। If Jesus Christ was only God to you and not the 100% man, then you don't have a savior who died for your sin. अगर आप केवल विश्वास करते हैं कि हाँ यीशु मसीह केवल परमेश्वर है, वो मनुष्य नहीं, तो आपका कोई उद्धारकर्ता नहीं है। And if Jesus Christ was only a man but not God, then you have another big problem. अगर आप केवल विश्वास करते हैं कि हाँ यीशु मसीह केवल मनुष्य परमेश्वर नहीं, तो आप एक और बहुत बड़ी समस्या में फंस सकते हैं। Then the big problem is that you are totally doomed and damned into hell. आप क्या हो जाएंगे? आप नरक में आप सड़ जाएंगे। And so the Bible speaks in verse number 6. और 6वां वचन में परमेश्वर की वचन हमें कहता है, This is he that came by water and blood. यही है वो जो पानी और लहू के द्वारा आया था। Even Jesus Christ, not by water only, but by water and blood. अर्थात यीशु मसीह वो ना केवल पानी के द्वारा वरन पानी और लहू दोनों के द्वारा आया था। And it is the Spirit that beareth witness, because the Spirit is truth. और जो गवाही देता है वो आत्मा है, क्योंकि आत्मा सत्य है। The Holy Spirit is trying to teach us a very important fact about the Lord Jesus Christ. और पवित्र आत्मा यहाँ पे हमें सिखाना चाहते हैं यीशु मसीह के बारे में, कुछ सत्यों के बारे में। The Lord Jesus Christ did not, the Bible says, this is he that came by water and blood. और देखा कि वो है जो पानी और लहू के द्वारा आया है। What is that water and blood? पानी और लहू क्या है? We see as we compare scripture with scripture that the water is the word of God. जैसे हम वचन में जो हम देखते हैं कि पानी जो है वो परमेश्वर की वचन है। And the Bible says that in the beginning was the word, and the word was with God, and the word was God. और परमेश्वर की वचन में लिखा है कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था, वो वचन परमेश्वर था। And in Revelation chapter 19 we are told that Jesus Christ has a name, and that name is the word of God. और प्रकाशित वाक्य 19 में हमें कहा गया है कि जो यीशु मसीह उसका नाम है परमेश्वर का वचन। We also understand that Jesus Christ is the living water. और हम समझते हैं कि हाँ हमारा यीशु मसीह जीवन की पानी है। The water speaks about the divinity of the Lord Jesus Christ. जो पानी है परमेश्वर के बारे में हमें बताती है। So the Lord Jesus Christ is the one true God. तो यीशु मसीह एक सत्य परमेश्वर है। And he was not just one true God. और केवल एक सत्य परमेश्वर ही नहीं The था। Bible says he also came by the blood. और परमेश्वर की वचन कहता है वो लहू से भी आया है। The blood speaks about the humanity of Christ. जो लहू है परमेश्वर की मनुष्य के बारे में बताती है। The Lord Jesus Christ was 100% human. जो यीशु मसीह वो मनुष्य था And he was 100% God. और 100% वो परमेश्वर भी था। And the Holy Spirit teaches this truth to us in the scripture. और परमेश्वर की वचन में पवित्र आत्मा यही हमें सत्य को सिखाता है। The Holy Spirit is the one who is the author of the Word of God. और वही पवित्र आत्मा जो लेखक है बाइबल की। Today we are thankful that Jesus Christ was not only 100% God, but he's also 100% man. आज हम धन्यवाद देते हैं कि केवल हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह केवल मनुष्य नहीं था, लेकिन वो परमेश्वर भी था। Because it is so important, because God cannot die. क्योंकि ये बहुत ही जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर नहीं मर सकता है। And if God cannot die, then a man should die for our sin. तो परमेश्वर नहीं मर सकता, इसलिए मनुष्य को मरना आवश्यकता है हमारे पाप And के no लिए। man is perfect, and no man can die for yours and for my sin. और कोई भी मनुष्य परफेक्ट नहीं है, शुद्ध नहीं है जो हमारे लिए मर सके। And the only one that can die for you and for me is the one who is sinlessly perfect. और केवल वही मर सकता है जो बिना पाप के पूरे तरीके से पवित्र है। And there is no man on this earth who is sinlessly perfect. और इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो कि धार्मिक है। And that's why the Lord Jesus Christ had to come as a man into this world. और इसलिए यीशु मसीह को आना पड़ा इस संसार में मनुष्य बनकर। And the Bible says that Jesus Christ is God manifest in the flesh. और परमेश्वर की वचन में लिखा कि परमेश्वर मनुष्य बना और वो यीशु मसीह है। So this evening we are believing in a one true God who became man for yours and for my sin. और आज की शाम के समय हम विश्वास करते हैं जो मनुष्य बना उसका नाम है यीशु मसीह। This is he that came by water and blood. और वो वही है जो लहू और पानी के द्वारा आया है। The water in Ephesians chapter 5 verse 25 speaks about that he is the water which is the word of God. और इफिसियों अध्याय 5 में हमें बताते हैं कि हाँ जो पानी वो परमेश्वर का वचन है। The word of God is the water. जो परमेश्वर का वचन वो हमारा पानी है। Jesus is the word of God. यीशु मसीह पानी है। And so God became man. तो परमेश्वर मनुष्य बना। He
came by the blood, the Bible says. और वो लहू के द्वारा परमेश्वर की वचन हमें बताती है। And so Jesus had a blood in him. तो यीशु मसीह के पास लहू था। But the blood of Jesus was without any sin. लेकिन यीशु मसीह की जो लहू है बिना पाप के था। Because even when Jesus took the form of a man, क्योंकि जब यीशु मसीह ने मनुष्य का रूप धारण and he किया was conceived in the womb of Mary, और जब मरियम के गर्भ में वो पैदा हुआ and he was there in the womb for 9 months in the womb of Mary, और 9 महीने तक वहाँ पे गर्भ में थे। remember he was not conceived by any activity, biological activity by any man in Mary. तो हमें जानना चाहिए यहाँ पे कोई रिश्ता के द्वारा यीशु मसीह वहाँ पे पैदा नहीं हुआ। Jesus did not have a biological father. और यीशु मसीह के पास कोई पिता नहीं था। And that's the reason why there was no sin in Jesus. और इसीलिए यीशु मसीह के अंदर लहू के अंदर कोई पाप नहीं था। Jesus did not have the blood of a man within him. और यीशु मसीह के पास वो मनुष्य का लहू नहीं था। Jesus' blood was divine and holy. और यीशु मसीह की जो लहू है वो डिवाइन था और पवित्र था। He was born in the womb of, he was conceived in the womb of Mary, the virgin, और वो मरियम के गर्भ में वो पैदा हुआ without any physical relationship of a man with her. बिना कोई रिश्ते के वो यीशु मसीह वहाँ पे जन्म हुआ। And this is so much important because if Mary and Joseph had a sexual relationship, then Jesus could not save you and me. तो अगर मरियम और यूसुफ का दोनों का रिश्ता हुआ तो यीशु मसीह पवित्र नहीं बन सकता था। Because through Joseph, Jesus could have sin in him. तो यूसुफ के द्वारा यीशु मसीह के अंदर पाप हो सकता था। And that's why the Bible says Jesus was born through the virgin. और इसीलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है कि यीशु मसीह कुंवारी के द्वारा जन्म हुआ। We read in book of Isaiah chapter 7 that a virgin will conceive a son. और हम देखते हैं यशायाह की पुस्तक में कि जो कुंवारी वो जन्म देगी। And that his name shall be called Emmanuel, which means God with us. और उसका नाम इमानुएल कहा जाएगा क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। So today we have a God who is dwelling with us. तो आज हमारे पास परमेश्वर जो हमारे साथ इस समय रह रहे हैं। So Jesus was born not only 100% God, but he was 100% man. तो यीशु मसीह इस प्रकार से जन्म हुआ कि वो केवल परमेश्वर ही लेकिन वो मनुष्य भी है। So as he came by the water which is divine, जो वो पानी के द्वारा आया जो डिवाइन है, he also came by the blood without any sin. और वो लहू के द्वारा आया बिना पाप के। And so the Bible never calls Jesus as the son of Joseph. तो परमेश्वर के वचन कभी नहीं कहता कि यीशु मसीह को कि वो यूसुफ का संतान है कहेगी। The Bible always calls Jesus as the son of Mary. और यीशु मसीह के वचन में लिखा है वचन में लिखा कि यीशु मसीह को कहा गया कि मरियम के संतान कहेगी। Because Joseph was not the biological father of Jesus. क्योंकि जो यूसुफ था वो यीशु मसीह का पिता नहीं था। And so the Bible, and so when we also see when Jesus did the first miracle in Canaan, और जहाँ हम देखते हैं जब यीशु मसीह ने कानान नगर में पहली बार जब चमत्कार को किया, he turned the water into wine. यीशु मसीह ने पानी को लहू द्राक्षारस में उसने परिणत किया। It's a picture of the water and the blood. और वो एक छवि दिखाता है पानी और लहू के बारे में। Jesus, that was the first miracle of Jesus. और वही यीशु मसीह का पहला चमत्कार था। God manifesting in the flesh. तो परमेश्वर वो मनुष्य के रूप धारण किया। The water turning into blood. जो पानी वो लहू में बदल जाता है। We also see the first miracle Moses did was turning the water into blood. और पहला जो चमत्कार मूसा ने किया वो भी हम देखते हैं कि पानी को लहू में When Jesus died on the cross of Calvary, जब कालवरी के क्रूस में यीशु मसीह मरा, in order to check whether Jesus died or was still alive, यीशु मसीह मरा है कि नहीं उन लोगों को चेक करने के लिए the soldiers pierced on the side of Jesus Christ. सोल्जर्स को आके भाला से उन लोगों को यीशु मसीह के वहाँ पे उसको लगा दिया। And the Bible says both water and the blood gushed out of him. और हम देखते हैं यीशु मसीह के वहाँ से पसली से लहू और पानी निकल And गया। that tells us that Jesus Christ was not just man but also God. और हमें पता था कि यीशु मसीह केवल परमेश्वर ही नहीं लेकिन मनुष्य ही नहीं लेकिन वो परमेश्वर भी था। The water tells about the divinity of Christ. जो पानी है वो यीशु मसीह की परमेश्वर के बारे में बताता है। And the blood speaks about the humanity of और Christ. जो लहू है यीशु मसीह के मनुष्य के बारे में बताता है। While Jesus was praying in the Garden of Gethsemane, जो गेत्सेमनी के बगीचा में यीशु मसीह प्रार्थना कर we रहे थे, see while he was praying with agony, जब यीशु मसीह दुख को लेकर प्रार्थना कर रहे थे, that his sweat became like blood. और उसकी जो पसीना है वो लहू जैसा बन गया। So through his sweat we are learning that he was 100% God and 100% man. और यीशु मसीह के पसीना के द्वारा हमें यहाँ से सीखने के लिए मिलता है कि यीशु मसीह 100% मनुष्य और 100% परमेश्वर Through था। his miracle in John chapter 2 we are reminded that he was
100% God and 100% और man. यीशु मसीह के चमत्कार के द्वारा हमें पता चलता है कि हाँ यीशु मसीह 100% मनुष्य और 100% परमेश्वर है। Turning the water into wine. और पानी को लहू में द्राक्षारस में बदलना। Even on this crucifixion, we see the water and the blood gushing out. और जहाँ देखते हैं यीशु मसीह क्रूस में चढ़ाया गया वहाँ पे भी पानी और लहू बहता है। And so how do we know that Jesus Christ was 100% man? हम कैसे पता चला कि यीशु मसीह 100% मनुष्य था? We read in the Bible that Jesus was hungry. और हम बाइबल में पढ़ते हैं कि हाँ यीशु मसीह भूखा था। He went and asked, he ate along with his apostles and the और disciples. अपने प्रेरितों के साथ चेलों के साथ यीशु मसीह ने खाया। The Lord Jesus was also thirsty. और यीशु मसीह प्यासा भी था। On the cross he asked for water. क्रूस में यीशु मसीह ने पानी मांगा। God cannot be thirsty, only man can be thirsty. परमेश्वर कभी प्यासा नहीं हो सकता, केवल मनुष्य ही प्यासा हो सकता है। And so we see that Jesus who gave a living water to that lady at the well is now thirsty on the cross. और हम देखते हैं जो यीशु मसीह ने जो जीवन की पानी दिया वहाँ पे कुआं के सामने उस औरत को, यहाँ पे यीशु मसीह अभी प्यासा है। So as a God he gives you everlasting life. परमेश्वर के जैसा वो क्या करता है, वो आपको अनंत जीवन को देता है। As a God he gives you the living water. और परमेश्वर से वो क्या, एक परमेश्वर होने के नाते वो आपको जीवन का पानी देता है। But as a man while hanging on the cross he is still thirsty. लेकिन एक मनुष्य होने के नाते जब वो क्रूस में था वो प्यासा था। Jesus Christ was tired and sleeping on a pillow in a sheep. और यीशु मसीह हम देखते हैं वो थक चुका था और वो तकिया के ऊपर वो सो रहे थे। The Lord Jesus when he was on earth as a man was not sitting idle playing video games. और यीशु मसीह संसार में था वो रह कर एक ही जगह में वो आलसी सा वो वीडियो गेम नहीं खेल रहे थे। The Bible says that he was always busy serving and working and doing miracle and preaching. और जब हम वचन में देखते हैं यीशु मसीह हमेशा बिजी रहते थे प्रचार करने में, चमत्कार कार्य करने में। And the Lord Jesus Christ was very tired and he had to take rest. और यीशु मसीह बहुत थक गए थे, उसको रेस्ट लेना चाहिए था। But this is the same God who said, "Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest." और वही यीशु मसीह कहता है लोगों को कि तुम मेरे पास आओ सारे थके हुए दबे हुए लोग, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। As God, he gives you and me everlasting rest. और परमेश्वर होने के नाते वो हम सभी को अनंत जीवन का वो हमें विश्राम But देता as है। a man, he was taking rest on a pillow. लेकिन मनुष्य जैसे वो क्या है, वो बहुत ही थक चुके थे। Yes, dear friend, he was 100% man and he was 100% और God. वो 100% मनुष्य था, वो 100% परमेश्वर था। Now, the Bible says, the Lord Jesus said that no one knows the time of his coming, not even the Son of Man. यीशु मसीह के वचन में लिखा है कि किसी को नहीं मालूम अंतिम दिन के बारे में, मनुष्य का पुत्र को भी नहीं मालूम है। There are a lot of people who are predicting and prophesying dates of the second coming of Christ. यीशु मसीह के दोबारा आने के लिए उन लोग, बहुत से लोग आजकल तारीख उन लोग बता रहे हैं। And some people are predicting the date of the rapture. और कोई रैप्चर के तारीख के बारे में उन लोग बता रहे हैं। But Jesus said, no, nobody knows. Even the Son of Man does not know. लेकिन हाँ यीशु कहता है कि किसी को नहीं मालूम और मनुष्य का पुत्र को भी नहीं मालूम But है। as God is the Alpha and the Omega who knows everything. लेकिन यीशु मसीह को सब कुछ पता है क्योंकि वो परमेश्वर वही शुरुआत वही अंत है। But as a man, certain things he chooses not to know. लेकिन एक मनुष्य होने के नाते कुछ चीजों को वो नहीं जानते हैं That's because he is a man. क्योंकि वो मनुष्य है। The Bible says that he and the Father are one. और वचन में लिखा कि यीशु मसीह और पिता एक है। Jesus said, I and my Father are one. और यीशु कहता है कि मैं और मेरा पिता समान है। If you have seen me, you have seen the Father. अगर तुम लोगों ने मुझे देखा तो तुम लोगों ने पिता को देखा है। He is from the beginning with the Father. और वो शुरुआत से ही पिता के साथ है। The Bible says he is the everlasting Father. और परमेश्वर के समय कहता है कि वही एक पिता है। And yet on the cross he said, Eloi, Eloi, lama sabachthani, my Father, why hast thou forsaken me? और वो क्रूस में ये कहता है कि पिता पिता तुमने मुझे क्यों किया था? As a man, he was forsaken by the Father because of the sin that was laid upon him. और एक मनुष्य होने नाते पिता ने उसको छोड़ दिया क्योंकि उसके ऊपर पूरे संसार के पाप थे। A lot of people ask this question, why did Jesus cry on the cross, Father, Father, why has you forsaken me? बहुत सारे लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि यीशु मसीह क्यों रोकर प्रार्थना किया कि पिता पिता आपने मुझे क्यों त्याग दिया? That's because as a man he suffered on the cross. क्योंकि एक मनुष्य होने के नाते वो क्रूस में वो हम दुख तकलीफ को He उठाया। did not suffer as a God. और वो एक परमेश्वर के जैसा उसने दुख तकलीफ को नहीं झेला। He did not die as God. और वो परमेश्वर के जैसा वो नहीं मरा। God cannot die. क्योंकि परमेश्वर कभी नहीं मरता है। God cannot separate. परमेश्वर कभी जुदा नहीं हो सकता है। One God, केवल एक ही परमेश्वर, not two God. दो परमेश्वर नहीं There is है। only one God. केवल एक ही परमेश्वर है। And so on the cross, Jesus as a man suffering for yours and my sin cries out,
my Father, why hast thou forsaken me? तो क्रूस में यीशु मसीह उस शरीर मरा और वो शरीर कहा कि ये पिता पिता आपने मुझे क्यों त्याग दिया। So you may understand that sometime when the Jehovah's Witnesses come to you, तो आपको समझना है जब यहोवा विटनेस के लोग आपके पास आते हैं, they only present that Jesus Christ is man. उन लोग केवल आपको बताएंगे कि हाँ यीशु मसीह केवल मनुष्य है। It's because they are not able to see the other side of the Bible. क्योंकि उन लोग बाइबल के दूसरे हिस्से को उन लोग देख नहीं सकते हैं। Because the Bible says the devil has blinded their eyes. ये मनुष्य के में लिखा कि जो शैतान उन लोग की आंखों को अंधा बना दिया And है। so they cannot see the part where the Bible says that Jesus Christ is तो God. बाकी हिस्से को उन लोग देख नहीं सकते जहाँ पे लिखा कि यीशु मसीह परमेश्वर And है। so all that they show is that Jesus Christ was man. तो लोग आपको केवल दिखाते हैं कि हाँ यीशु मसीह मनुष्य है। Jesus Christ was separated from the Father as a man because the sins of the whole world was laid upon Jesus. और यीशु मसीह पिता से वो अलग हो गया क्योंकि पूरे संसार के जो पाप थे यीशु मसीह के ऊपर थे। And that's the reason on the cross Jesus had to cry, Father, my Father, why hast thou forsaken me? और इसीलिए यीशु मसीह क्रूस में रोकर ये कहा कि पिता पिता आपने मुझे क्यों त्याग दिया। And so as a man, Jesus suffered and died. और एक मनुष्य होने के नाते यीशु मसीह हमारे दुख तकलीफ को उठाकर वो मरा। As a man, he bled and he died. और एक मनुष्य होने के नाते यीशु मसीह लहू बहाया और मारा गया। As a man, Jesus was forsaken by the Heavenly Father. और एक मनुष्य होने के नाते पिता ने उसको त्याग दिया। Now, as God, he doesn't have to pray. और एक परमेश्वर होने के लिए उसको प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। But as a man, we read early in the morning, Jesus would go up to the mountain and pray. लेकिन हम देखते हैं बाइबल में क्योंकि वो मनुष्य है इसलिए वो सुबह सुबह जाकर वो प्रार्थना करता है। So Jesus had two nature. और यीशु मसीह के पास दो चरित्र है। Though Jesus Christ was 100% God, अगर भी यीशु मसीह परमेश्वर था, he was also 100% man. और वो 100% मनुष्य भी था। But as a man, he lived without any sin. और एक मनुष्य होने के नाते वो बिना पाप के वो जिया। As a man, he never had any sin in him. और एक मनुष्य होने के नाते उसके अंदर कोई पाप नहीं था। And that's why as a man, he was qualified to die for the sins of the men of the whole world. और इसलिए यीशु मसीह All the men and women. और इसलिए यीशु मसीह क्वालिफाइड है क्योंकि यीशु मसीह पवित्र है और हर एक जन के लिए मरने के लिए वो काबिल है। And so we also see that Jesus Christ coming in the water is also speaking about his baptism. और जो हम देखते हैं यीशु मसीह पानी से आया उसके बारे में कि बपतिस्मा के बारे में हमें बताती है। The baptism speaks about how that Jesus Christ was introduced to the world as a lamb that takes away the sins of the whole world. और बपतिस्मा के द्वारा यीशु मसीह अपने आप को बताया कि देखो जो परमेश्वर की जो मेमना है पूरे संसार के पाप के लिए वो उद्धारकर्ता आया है। When he went into the water, John the Baptist is introducing Jesus. Here comes the Lamb of God that takes away the sins of the whole world. तो जब यीशु मसीह पानी में जाता है बपतिस्मा लेने के लिए तो यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने कहता है कि देखो यहाँ पे परमेश्वर की मेमना जो पूरे संसार के पाप को उठाने वाला है। Jesus Christ was introduced as the sacrificial lamb. और यीशु मसीह को कहा गया कि यीशु मसीह हमारा सैक्रिफाइस होगा हमारे लिए। But yet at the same time Jesus was proved to be God by the voice of the Father from heaven. और उसी समय पिता ने यीशु मसीह को कहा कि वो परमेश्वर का संतान है। The Lord, there is a voice that came from heaven when Jesus was baptized. और जब यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया गया आकाश से एक शब्द आया, This is my beloved son, in whom I am well pleased. यही मेरा प्रिय पुत्र है जहाँ पे मैं संतुष्ट हूँ। Remember, God can only produce God. आपको जानना चाहिए परमेश्वर ही केवल परमेश्वर को पैदा कर सकता है। Papaya tree can only produce papayas. जो पपीता के पेड़ है वो केवल पपीता का फल दे सकता है। Coconut can only produce coconut. जो नारियल है वो केवल नारियल ही दे सकता है। Monkey can only produce monkey. जो बंदर है वो केवल बंदर को ही वो पैदा कर सकता है। Humans can only produce humans. जो मनुष्य है वो केवल मनुष्य को ही पैदा दे सकता है। And God can only produce God. और परमेश्वर केवल परमेश्वर को ही पैदा कर सकता है। So when God the Father said, "This is my beloved Son, in whom I am well pleased," there itself the Lord Jesus Christ was introduced as God manifest in the flesh. जब स्वर्गीय पिता ने कहा कि यही मेरा प्रिय पुत्र है जहाँ पे मैं संतुष्ट हूँ, वहाँ से हमें पता चलता कि यीशु परमेश्वर केवल परमेश्वर को जन्म दे सकता है। So we see as a man Jesus Christ got baptized. और हम देखते हैं एक मनुष्य होने के नाते यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया। As a God, he doesn't have to take baptism. अरे परमेश्वर होने के नाते उसको बपतिस्मा लेने की जरूरत नहीं है। And so we see as a man he was tired.
और हम देखते हैं मनुष्य होने के लिए वो बहुत ही थक चुके थे And so he took rest. और उसने विश्राम को लिया। But as a God, he is the one who gives us और rest. एक परमेश्वर होने के नाते वो हम सभी को विश्राम देता है। You see, as a man, he asked for water on the cross. हम देखते हैं मनुष्य होने के नाते वो क्रूस में पानी मांगा, But at the well, he is the God who gives the living water. लेकिन उस कुआं में उस औरत को यीशु मसीह ने एक जीवन का पानी दिया। On the cross, as a man, he gave up his life. और क्रूस में उसने अपने जीवन को त्याग दिया। But as a God, he gives everyone the everlasting life. लेकिन एक परमेश्वर होने के नाते हम सभी को अनंत जीवन वो देता है। As a man, he had to go and pray to the Father. एक मनुष्य होने के नाते पिता के पास उसको प्रार्थना करना चाहिए था। As a God, he says, ask anything in my name. और एक परमेश्वर होने के नाते वो कहता है कि कुछ भी तुम पूछो मेरे नाम में। He did not just come by water, he also came by blood. वो केवल पानी के द्वारा नहीं है, लेकिन लहू के द्वारा भी हुआ। And the Holy Spirit teaches us this truth. और पवित्र आत्मा ये सत्य को हमें सिखाता है। The Lord Jesus Christ is God. यीशु मसीह परमेश्वर है। Why? क्यों? Because the Bible says he is the seed of the Holy Ghost. क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा कि वो पवित्र आत्मा का एक बीज है। Mary conceived Jesus in her womb by the overshadowing of the Holy Spirit. तो पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा मरियम ने गर्भवती होकर यीशु मसीह को जन्म दिया। Jesus Christ was not born by man but by God himself. यीशु मसीह मनुष्य की तरह जन्म नहीं हुआ, लेकिन परमेश्वर खुद उसके द्वारा जन्म हुआ। Jesus Christ was born but was never created. यीशु मसीह जन्म हुआ, लेकिन यीशु मसीह का सृष्टि कभी भी नहीं हुआ। In fact, Jesus Christ is the creator क्योंकि यीशु मसीह सृष्टि करता है। because he is God. क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर है। The Bible says in Colossians chapter 1 verse 14 and 15 and 16 that Jesus Christ is the creator. और कोलोसिया के 1 उसमें हम 14 से लेकर हम 16 तक देखते हैं कि यहाँ पे लिखा कि यीशु मसीह सृष्टि करता है। Everything was created by God and for him. और सब कुछ यीशु मसीह के लिए बनाया गया, उसने ही बनाया है। Colossians 1:15 and 16 says all things were created by Jesus and for Jesus. और कोलोसिया में लिखा है कि सब कुछ यीशु मसीह के द्वारा रचा गया है और यीशु मसीह के लिए रचा गया है। John chapter 1 says all things were made by the Lord Jesus Christ and there is nothing else and nothing is made without the Lord Jesus Christ. और यूहन्ना में लिखा है कि सब कुछ यीशु मसीह के द्वारा रचित हुआ है और ऐसा कुछ भी नहीं जो यीशु मसीह के बिना रचित हुआ है। Jesus Christ is the creator और यीशु मसीह सृष्टि करता है because Jesus Christ is God. क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर है। Jesus committed no sin यीशु मसीह ने ऐसा कुछ पाप नहीं किया है because there was no sin in him. क्योंकि यीशु मसीह में कोई पाप नहीं है। Because he did not commit any sin. क्योंकि यीशु मसीह ने कुछ पाप नहीं किया है। And so Jesus never once asked people to forgive him. और यीशु मसीह ने कभी भी एक बार भी नहीं पूछा लोगों से कि मुझे क्षमा करें। There is only one man in this world who never had to confess his sin to anybody. इस संसार में केवल एक व्यक्ति है जिसको कोई क्षमा की जरूरत नहीं है। And that is Jesus. और वो यीशु है। Because as a man he never committed sin and as God he never had sin. और एक परमेश्वर होने के नाते उसने कभी पाप नहीं किया और उसके अंदर कुछ पाप नहीं है। In fact, Jesus is the forgiver of sins. और हम देखते हैं कि यीशु मसीह क्षमा करने वाला परमेश्वर है। We read in the Bible over and over again, Jesus goes and forgives the sins of the sinners. हम बाइबल में देखते हैं यीशु मसीह बार-बार जाकर लोगों को क्षमा करता है। The Lord Jesus says, "I'm not come for the righteous, but I'm come to save the sinners." और यीशु मसीह वचन में कहता है कि मैं धार्मिक लोगों के लिए नहीं, लेकिन अधार्मिक लोगों के लिए उनको बचाने के लिए। Jesus tells the man who was at the pool and nobody could throw him into the water. Jesus tells him to stand up, take up his mat and walk, and that his sins are forgiven. और एक पूल में जहाँ पे एक मनुष्य बहुत सालों से वहाँ पे अपेक्षा कर रहे थे और यीशु मसीह उसको चंगा देता है और उसको कहता है क्षमा हो गया तुम्हारे पाप। Jesus tells that woman who was caught in adultery, and Jesus tells that woman, "Go, woman, your sins are forgiven. Sin ye no more." और जो व्यभिचार में जो पकड़ा गया उस औरत को यीशु मसीह कहता है कि तुम जाओ तुम्हारा पाप क्षमा हुए। The woman that was having an issue of blood came to Jesus for healing. Jesus said, "Go, your sins are forgiven." और यीशु मसीह उस औरत को कहता है जिसका लहू बहने का बीमार था, यीशु मसीह उसको कहता है कि तुम जाओ तुम्हारा पाप क्षमा हुआ। He is the one who died for the sins of the whole world. केवल वही यीशु मसीह जो हम सब के लिए पूरे संसार के लिए मरा। He forgives everyone's sins whoever comes to him. और जो कोई यीशु मसीह के पास आता है वो क्षमा करता है। He is God. वही परमेश्वर है। He said, "If you have sinned me, you have sinned the Father." और यीशु कहता है अगर तुमने मुझे देखा तो तुमने पिता को भी देखा He is है। God because he is able to forgive sins. वो परमेश्वर है क्योंकि वो पाप को क्षमा कर सकता है।
In fact, in the Bible, when Jesus forgave one man's sin, और हम देखते हैं बाइबल में जब यीशु मसीह ने एक मनुष्य का पाप क्षमा when किया, Jesus told a man that your sins are forgiven, यीशु मसीह उस व्यक्ति को कहता है कि तुम्हारा पाप क्षमा हुआ, the Jewish people took stone to kill Jesus. और यहूदियों ने पत्थर लेकर यीशु मसीह को मारने के लिए चाहा। So Jesus asked them, why do you stone me? और यीशु मसीह ने उनको पूछा कि तुम क्यों मेरे ऊपर पत्थर फेंकना चाहते हो? And they say, we are not stoning you because you did a good work. हम तुम्हारे ऊपर पत्थर नहीं फेंक रहे क्योंकि तूने अच्छा कार्य किया। We are not taking up this stone to stone you because you healed this man. हमने पत्थर को नहीं उठाया आपके ऊपर फेंकने के लिए क्योंकि आपने इस व्यक्ति को चंगाई किया। But we are stoning you because being a man, you make yourself equal with God. लेकिन हम पत्थर फेंकना चाहते हैं क्योंकि तुम मनुष्य हो, अगर खुद को तुम परमेश्वर बता रहे हो। The Jewish really understood what Jesus was saying. लेकिन अंदर अंदर यहूदी लोगों को पता चल गया कि यीशु मसीह क्या कहना चाहता है। They did not crucify Jesus because he was a good teacher. यीशु मसीह को उन्होंने क्रूस पे नहीं चढ़ाया क्योंकि यीशु मसीह एक अच्छा शिक्षक था। They did not crucify Jesus because he was a miracle worker. यीशु मसीह को उन्होंने क्रूस पे नहीं चढ़ाया क्योंकि यीशु मसीह चमत्कार करने वाला व्यक्ति था। But they crucified Jesus because Jesus claimed to himself to be God manifest in the flesh. लेकिन यीशु मसीह को इसलिए क्रूस पे चढ़ाया क्योंकि यीशु मसीह ने खुद को परमेश्वर का समान बनाया। Yes, dear friends, Jesus is able to forgive yours and my sin because he is God. हाँ मेरे प्रियो, यीशु मसीह हम सभी के पाप को क्षमा कर सकता है क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर है। Because only God can forgive yours and my sin. क्योंकि केवल परमेश्वर ही हम सभी का पाप को क्षमा कर सकता है। And Jesus is God. और यीशु मसीह परमेश्वर है। Now Jesus rose again on the third day. यीशु मसीह तीसरा दिन वापस जी उठा। No man can do that. कोई भी मनुष्य ये नहीं कर सकता है। But Jesus rose again लेकिन यीशु मसीह दोबारा उठा because he is God. क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर है। Now Jesus rose others from death. यीशु मसीह ने दूसरों को भी मुर्दों में से जी उठाया, but they died again. लेकिन वो लोग वापस से मरा। But Jesus rose लेकिन यीशु मसीह वापस उठा and he lives forever और वो हमेशा हमेशा के लिए जिया because he is God. कि वो परमेश्वर है। Hallelujah. हालेलुया। He did great miracles. यीशु मसीह ने बहुत सारे अद्भुत चमत्कार को किया। He raised the dead. और मुर्दों को जिलाया। He walked on the water. और समुद्र के ऊपर वो चला। He multiplied the 5 breads and 2 fish and fed 20,000 people. 5 रोटी और 2 मछली को उसने बहुत से लोगों को खिलाया। Why? क्यों? Only God can do this. केवल परमेश्वर ही यही कर सकता है। No man can walk on the water. कोई भी मनुष्य पानी के ऊपर नहीं चल सकता। No man can multiply breads and fish and feed 20,000 people. कोई भी मनुष्य 5 रोटी और 2 मछली से लोगों को नहीं खिला सकते, बहुत सारे लोगों को। Only God could do that. केवल परमेश्वर ही वो कर सकता है। Peter took a sword one day at the Garden of Gethsemane. पतरस ने चाकू लेकर वहाँ पे रुका At the Garden of Gethsemane. और गेत्सेमनी के बगीचा में And chopped off the ears of the enemy of Jesus. और यीशु मसीह के दुश्मन की जो कान है उसको काट के फेंक दिया। Immediately Jesus Christ took that ears that was fallen on the ground और जो गिरा हुआ कान था यीशु मसीह ने उसको लिया and put it back where that was belonged to that soldier. और वापस से वही जगह में यीशु मसीह ने लगा दिया। And immediately the blood stopped और उसी समय जो लहू बहना वो बंद हो गया and the ears just fixed up back. और वापस से वही कान वहाँ पे फिक्स्ड हो गया। Only God could do that. केवल परमेश्वर वो कर सकता है। No man can do कोई that. मनुष्य ये नहीं कर सकता है। No man can do it. कोई मनुष्य नहीं कर सकता है। No man has ever done it. कोई भी मनुष्य ये नहीं किया है। But only Jesus can. लेकिन केवल यीशु मसीह कर सकता है। One day Jesus took Peter, James and John to the mountain. एक दिन यीशु मसीह ने पतरस, जेम्स और जॉन को लिया To the mountain. और माउंटेन में लेके गया, पहाड़ And there में, in the mountain, और वहाँ पे पहाड़ में लेके जाकर Jesus transfigured himself. और यीशु मसीह ने खुद को बदला And Peter, James and John was able to see the divinity and the glorification of Jesus और Christ. पतरस, याकूब और यूहन्ना ने यीशु मसीह की महिमा को देखा Jesus is God. क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर है। They worship Jesus. और उन्होंने यीशु मसीह की इबादत किया। In the Bible we read the wise men when Jesus was born. हम देखते हैं बाइबल में जो ज्ञानी व्यक्ति लोग, And Jesus was like around 8 years old. जब यीशु मसीह तकरीबन 8 साल के थे, Or maybe he was 3-4 years old. शायद वो 3 या फिर 4 साल के थे, I think he was 3 years old. शायद मुझे लगता है वो 3 साल के थे, Because the Bible calls him as a child. क्योंकि परमेश्वर की वचन में लिखा है कि एक पुत्र के लिए। Because when the wise men came, जब ज्ञानी लोग आया Jesus was not in a manger as a babe, और यीशु मसीह उस गौशाला में नहीं था एक बच्चा के जैसा, but he was in the house as a child. लेकिन यीशु मसीह एक संतान जैसा उस घर में थे। So Jesus was 3 years old. तो यीशु मसीह 3 साल के थे। So that time the wise man तो comes उस समय जो ज्ञानी व्यक्ति लोग आता है
And the Bible says they bowed before him and worshipped Jesus. और उन लोगों ने यीशु मसीह के आगे झुककर उन लोगों ने यीशु मसीह को वर्शिप किया। They did not worship Mary. उन्होंने मरियम को वर्शिप नहीं किया। They did not worship Joseph. उन्होंने यीशु का वर्शिप नहीं किया। They did not worship the donkeys and the angels. और गधा या फिर फरिश्ते का उन्होंने आराधना नहीं किया। The wise men worshipped him. लेकिन जो ज्ञानी लोग हैं उन लोग यीशु मसीह की आराधना किया। They worshipped the Lord Jesus उन्होंने Christ. यीशु मसीह को आराधना किया। Who worshipped him? किन लोगों ने आराधना किया यीशु मसीह का? The wise men. जो ज्ञानी लोग। Amen. हालेलुया, आमीन। Not the fools. जो मूर्ख लोग नहीं है। You know why people reject Jesus Christ? आपको पता है क्यों ये आजकल लोग यीशु मसीह को इनकार करते हैं? Because they are fools. क्यों लोग मूर्ख हैं? The wise men जो ज्ञानी व्यक्ति लोग हैं worship Jesus उन्होंने Christ. यीशु मसीह की आराधना किया। The wise men came from the east. उन लोगों ने ईस्ट से उन लोग आया यीशु मसीह की In आराधना fact, किया। it took them 3 years to come. और ये 3 साल लगा उन लोगों को आने के लिए। When Jesus was born, there was the star of the east. जब यीशु मसीह जन्म हुआ पूरब से एक स्टार था। And the star of the east showed the way for the wise men to come where Jesus was. जो ईस्ट के जो सितारे थे वो उन लोगों को मार्ग दिखाया जहाँ पे यीशु मसीह जन्म हुआ है। They journeyed for almost 3 years to come to the place where Jesus was. तो 3 साल के लिए उन लोग लगातार उन्होंने जर्नी किया जहाँ पे यीशु मसीह जन्मा है। And they came there. और वहाँ पे उन लोग आए। And when they saw, और जब उन्होंने देखा they bowed and worshipped the Lord Jesus Christ. और उन्होंने यीशु मसीह के शरण में झुककर उन्होंने आराधना किया। The Bible says so many times that every sinner who was healed worshiped the Lord Jesus और Christ. हम देखते हैं बाइबल में जितने सारे जो बीमार लोग थे उन लोग जो चंगाई पाया उन्होंने यीशु मसीह की आराधना किया। Jesus never once rejected the worship. यीशु मसीह ने कभी इनकार नहीं किया उन लोगों की आराधना को। In fact, Jesus accepted the worship लेकिन यीशु मसीह ने उन लोगों का आराधना को ग्रहण किया because Jesus is God. क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर है। Now some people say, where did Jesus say that I am God? और बहुत से लोग कहते हैं कि कहाँ पे यीशु मसीह ने कहा कि मैं परमेश्वर हूँ। So many places he said I am God. बहुत सारी जगहों में यीशु मसीह कहता है कि मैं परमेश्वर हूँ। Jesus said, यीशु ने कहा। now Philip asked Jesus, फिलिप्पुस ने यीशु मसीह से पूछा, Jesus, show us the Father. और हमें पिता को दिखाओ। And Jesus said, और यीशु ने कहा, if you have seen me, अगर तुमने मुझे देखा है you have seen the तो Father. तुम लोग ने पिता को भी देखा The है। Father is God. जो पिता है वो So परमेश्वर है। Jesus is saying, तो यीशु मसीह कहता है, if you have seen me, अगर तुम लोगों ने मुझे देखा है you have seen God. तो तुम लोगों ने परमेश्वर को देखा है। Jesus claimed to be God. और यीशु मसीह यहाँ पे खुद को कहता है कि मैं परमेश्वर हूँ। Now in the Bible we also read in Thomas. और बाइबल में हम पढ़ते हैं जहाँ पे थॉमस पूछता है, Thomas is addressing Jesus as, और थॉमस यीशु मसीह को ये कहता है, after the resurrection when he puts his finger in the wounds of और Jesus, यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद जब यीशु मसीह के घाव में वो उंगली को डालता है, Thomas worshipped Jesus by saying, my Lord and my God. और थॉमस ये कहकर आराधना करता है कि हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। How wonderful our God is. कितना महान हमारा परमेश्वर। Jesus never said, no, I'm not God. यीशु मसीह ने कहा कि नहीं मैं परमेश्वर नहीं हूँ। In fact, Jesus says, blessed art thou. लेकिन यीशु मसीह कहता है कि तुम लोग धन्य हो। Amen. आमीन। Because he is God. क्योंकि वो परमेश्वर है। In the Bible we read, बाइबल में हम पढ़ते हैं in Revelation chapter 1 verse number 8, और प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 उसका वचन 8 में Jesus claims himself to be the Almighty God. और यीशु मसीह अपने आप को कहता है कि मैं सामर्थ्यशाली परमेश्वर हूँ। Jesus said, I'm the one who was, who is, and who is to come, the Almighty. और कहता है कि जो था, जो है और जो आने वाला है, जो सामर्थ He's परमेश्वर not है। simply saying I'm God, but he's saying I'm the Almighty. वो केवल ये कहना कि मैं परमेश्वर हूँ, लेकिन वो सामर्थ्यशाली परमेश्वर कह रहा है। In fact, in 1 Timothy chapter 3 verse 16, और पहला तीमुथियुस 3:16 में हम देखते हैं, Apostle Paul says that Jesus Christ is God manifest in the और flesh. पौलुस कहता है कि जो परमेश्वर है, जो मनुष्य बना, वो यीशु मसीह है। John says in 1 John chapter 5 verse 20 that Jesus Christ is the true God and eternal और life. हम देखते हैं पहला यूहन्ना 5 उसका 20 में कि यीशु मसीह ही अनंत जीवन है, वो परमेश्वर है। John says in John chapter 1 verse 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. और यूहन्ना कहता है कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। Isaiah says in chapter 9 verse 6
that Jesus Christ is the everlasting Father and the mighty God. और यशायाह 9:6 में कहता है कि यीशु मसीह सामर्थ्यशाली और वही पिता है He is the one true God. और वही एक सत्य परमेश्वर है। Jesus Christ is 100% God, 100% और man. यीशु मसीह 100% परमेश्वर और 100% मनुष्य है। Your sins are forgiven today because that 100% man died and shed his divine holy blood. और आज हमारे पाप क्षमा हुए क्योंकि 100% मनुष्य हम सभी के लिए अपने पवित्र लहू को बहाया है And he washed away our sins. और यीशु मसीह ने हम सभी के पाप को धो डाला है And our sins are forgiven because that 100% man, the Lord Jesus Christ, is 100% God. और हमारा पाप इसी वजह से क्षमा हो गया कि 100% मनुष्य बनकर हमारे लिए मरा And so we have the everlasting life today. और हमारे पास आज अनंत जीवन है। We don't have a temporary life. हमारे पास कुछ दिनों के लिए जीवन नहीं है We have the everlasting life. लेकिन हमारे पास अनंत जीवन है। The life of Christ resides within us now. यीशु मसीह के जीवन हमारे अंदर जीता है। Hallelujah. हालेलुया। He came by water and the blood. यीशु मसीह पानी और लहू के द्वारा आया। The water speaks about the divinity of Christ. जो पानी हो यीशु मसीह की परमेश्वर के बारे में वो बताता है And the blood speaks about the humanity of और Christ. जो लहू है यीशु मसीह की मनुष्यता के बारे में बताता है। And these two came together, the humanity and the divinity of Christ. और ये जो दोनों हैं वो परमेश्वर और मनुष्य के बीच में आता है। And as a man, he died for yours and for my sin by shedding his और blood. एक मनुष्य होने के नाते वो हम सभी के लिए अपने लहू को बहाने के लिए वो मारा गया। And as man and as God, he rose again on the third और day. एक परमेश्वर और एक मनुष्य होने के नाते वो तीसरा दिन वापस जी उठा। Hallelujah. हालेलुया। May we never forget these beautiful truths. और ये सत्य को हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। May we never allow any false religion or cults to deceive you and me. और गलत शिक्षक से या फिर गलत धर्म से हमें ये चीजों को हमें भरमाना नहीं चाहिए। But rather be firm in the word of God. लेकिन हमें परमेश्वर की वचन में हमें लगातार रहना है। Jesus Christ is man. यीशु मसीह मनुष्य है Jesus Christ is God. और यीशु मसीह परमेश्वर है। If people don't believe that Jesus Christ is God, अगर लोग विश्वास नहीं करते कि यीशु मसीह परमेश्वर है कह के then they cannot be saved. तो उन लोग उद्धार प्राप्त नहीं कर सकते। Their sins cannot be उन लोग के forgiven. पाप क्षमा नहीं होंगे। They cannot go to उन heaven. लोग स्वर्ग में नहीं जा पाएंगे। They can say many good things about Jesus as man. उन लोग यीशु मसीह के बारे में बहुत सारे कुछ चीजों को अच्छे से बातों को कह सकते हैं। Even if they say that yes, we believe that Jesus Christ died for our sin, shed his blood, was dead and rose again on the third day. Even if they believe all this, but if they don't believe that Jesus Christ is God, they will still go to hell. अगर भी उन लोग विश्वास करते कि हाँ यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरा दिन जी उठा, अगर उन लोग विश्वास नहीं करते कि हाँ यीशु मसीह परमेश्वर है, तो उन लोग उद्धार नहीं प्राप्त कर पाएंगे। The most important truths to be saved, the first important truth to be saved is to believe that Jesus Christ is one true God who became man and came into this world. सबसे महत्वपूर्ण जो सत्य हमें विश्वास करना चाहिए उद्धार के लिए है कि यीशु मसीह परमेश्वर जो मनुष्य बनकर इस जगत में आया। Anyone that claims to be a Christian but does not believe that Jesus Christ is God is not a Christian but is going to hell. अगर कोई अपने आप को ये कहता कि हाँ मैं क्रिश्चियन हूँ और वो कहता कि अगर वो विश्वास नहीं करता कि यीशु मसीह परमेश्वर है ये कह के तो वो नरक को चले जाएगा। Just believing in death, burial and resurrection will not save you. यीशु मसीह की मृत्यु पर और पुनरुत्थान पे विश्वास करने के द्वारा उद्धार प्राप्त नहीं There are a करते। lot of people who believe in death, burial and resurrection and roasting in hell right now. और बहुत सारे लोग ये विश्वास करते हैं उन लोग आज नरक में सड़ रहे हैं उन लोग। And there will many who will go to hell for believing in death, burial and resurrection. और बहुत सारे लोग नरक में जाएंगे ये विश्वास करने के द्वारा। Because they don't believe, they just believe in the death, burial and क्योंकि उन लोग resurrection. केवल यीशु मसीह की मृत्यु में और पुनरुत्थान के ऊपर उन लोग विश्वास करते हैं। But they are not believing that Jesus Christ is the one true God who became man. लेकिन लोग ये विश्वास नहीं करते कि यीशु मसीह सत्य परमेश्वर जो मनुष्य बना। The Jehovah's Witnesses believe in the death, burial and resurrection. यहोवा वitnesses के लोग विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया और तीसरा दिन जी But they उठा। don't believe that Jesus Christ is God. लेकिन लोग ये विश्वास नहीं करते कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है। The Mormons believe in the death, burial and resurrection. मोर्मन्स लोग भी विश्वास करते हैं यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन वापस जी उठा के। But they don't believe that Jesus Christ was and is God. और लोग ये विश्वास नहीं करते कि यीशु मसीह परमेश्वर था और परमेश्वर है के।
The Mormon says he was a man who became God. और लोग कहते हैं कि मोहम्मद लोग कहते हैं कि यीशु मसीह मनुष्य था जो परमेश्वर बना। No. Jesus Christ is God who became man and is always God. लेकिन सत्य ये कि ये परमेश्वर ही मनुष्य बना और वो हमेशा यीशु मसीह हमेशा So परमेश्वर just है। merely believing in death, burial, resurrection does not save anybody. तो यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, तीसरा दिन जी उठा, ये विश्वास करने से हमें उद्धार नहीं मिलती है। That's an incomplete gospel. और ये पूरा कंप्लीट तरीका का एक समाचार नहीं है। For an individual to be saved एक व्यक्तिगत को उद्धार पाने के लिए and to have your sins forgiven, और आपके पाप क्षमा पाने के लिए one has to believe that Jesus Christ is the one true God उस व्यक्ति को विश्वास करना चाहिए कि यीशु मसीह सत्य परमेश्वर है and that he became man और वो मनुष्य बना and he died on the cross by shedding his precious और blood अपने क्रूस पे वो मारा गया अपने पवित्र लहू को बहाने के द्वारा to save you from sin. और आपको पाप से बचाने के लिए He was buried and rose again on the third day. और वो गाड़ा गया, तीसरा दिन वापस जी उठा। This is the complete gospel. और ये पूरा समाचार है। No other gospel can save you. कोई भी अलग से समाचार आपको उद्धार नहीं दे सकता Nothing है। can save you. कुछ भी आपको उद्धार नहीं दे सकता है। You are a sinner if you are not saved. आप पापी है अगर आप उद्धार नहीं If you पाए। are saved, then your sins are forgiven. अगर आप उद्धार पाए तो आपके पाप क्षमा हो चुके हैं And you are a child of और God. आप परमेश्वर के संतान हैं And you obtain the everlasting life. और आपने अनंत जीवन को आपने प्राप्त किया है। You will never go to hell. आप कभी भी नरक को नहीं जाएंगे, You will never lose your salvation आप कभी अपने उद्धार को नहीं खोएंगे because you got the everlasting life. क्योंकि आपने अनंत जीवन को प्राप्त किया है। If anybody is not saved, अगर कोई यहाँ पे उद्धार नहीं पाए हैं not sure of the salvation, और आपके उद्धार के बारे में आपको पता नहीं है those who are watching online, और जो ऑनलाइन में देख रहे हैं इस समय, if you're not sure of your salvation, अगर आपको उद्धार के बारे में इस समय श्योर नहीं I would है, encourage you to consider the message मैं today. आप सभी को उत्साहित करूंगा ये प्रचार को जानने के लिए, सुनने के लिए। Remember, Jesus Christ is the one true God. और आपको याद करना है कि यीशु मसीह एक सत्य परमेश्वर है And you are a sinner on the way to hell. और आप पापी हैं, आप नरक में जाने वाले हैं। But to save you from hell, लेकिन आपको नरक से बचाने के to लिए forgive you from sin, और पाप से क्षमा देने के लिए God became man and came into this world परमेश्वर मनुष्य बनकर इस जगत में आया and took your sins upon him और आपके पाप को अपने ऊपर लिया and died on the cross of Calvary by shedding his precious और blood. कालवरी के क्रूस में वो आपके लहू को बहाने की तरह वो मारा गया, Was buried and rose again on the third day. गाड़ा गया, लेकिन वापस तीसरे दिन जी उठा He is the victorious God. और वो विजय प्राप्त करने वाला He is the परमेश्वर one है true और God. एक सत्य परमेश्वर है There is no other God और कोई भी दूसरा परमेश्वर नहीं है but the Lord Jesus Christ. लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह And everyone should come to him और सभी लोग यीशु मसीह के पास आना चाहिए and believe in the Lord Jesus और Christ. यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना चाहिए। Repent of their sin. उन लोगों के पाप से पश्चाताप करना है, Turn away from their righteous work. उन लोगों के धार्मिकता कार्य से उन लोगों को मन फिराना Turn है, away from their religious उन work. लोगों के धार्मिकता की कार्य से उन लोगों को फिराना है, Turn away from their sin उन लोगों के पाप से मन फिराना है and turn to the Lord Jesus और Christ यीशु मसीह के पास उन लोगों को आना है and receive and believe in the Lord Jesus और यीशु मसीह को विश्वास करते हुए ग्रहण करना है that He is the one true कि God वो एक सत्य परमेश्वर है who came into this world as a man, जो संसार में मनुष्य बनकर died on the cross by shedding His blood, उसमें मारा गया अपने लहू को बहाने के द्वारा, was buried and rose again on the third day. गाड़ा गया और तीसरे दिन ऊपर जी उठा। Anyone that believes this truth अगर कोई भी ये सत्य को विश्वास करते हैं and receives this truth और ये सत्य को ग्रहण करते हैं shall be वो saved लोग उद्धार को प्राप्त करेंगे and shall have everlasting और life, लोगों को अनंत जीवन को प्राप्त होगा shall escape the eternal damnation और नर से उन लोग आजादी प्राप्त करेंगे and shall have everlasting और life, लोगों को अनंत जीवन को प्राप्त होगा shall escape hell और नर से उन लोग बचेंगे and shall be translated to heaven, और वो लोग स्वर्ग में चले जाएंगे shall not be called as the son of the devil, और लोगों को शैतान के संतान नहीं कहा जाएंगे but shall be called as the son of लेकिन God. परमेश्वर के संतान उन लोगों को कहला जाएंगे। Amen. आमीन। Shall we pray? इस समय हम प्रार्थना करें। Everlasting Father, हमारे जीवित परमेश्वर प्रभु one जी, true जो God, एक सत्य परमेश्वर है, you became man, आपने मनुष्य बना, came into this इस world, संसार में आया, took our sins upon you, हमारे पाप को अपने ऊपर लिया and you died as a man on the cross of और एक Calvary मनुष्य होकर पिता आपने हमारे लिए मरा, by shedding your precious अपने blood, पवित्र लहू को बहाने के was द्वारा buried वो गाड़ा गया and rose again on the third और day. तीसरा दिन वापस जी उठा। Thank you, Lord, प्रभु जी आपको धन्यवाद for इस समय saving us. हमें उद्धार देने के लिए। If there is anyone who is not saved, अगर यहाँ पे कोई उद्धार नहीं पाए प्रभु जी, we pray that thou will speak to their heart. हम प्रार्थना करते हैं उन लोगों के हृदय में बात करिए प्रभु जी, Convict them, O उन God, लोगों को बताइए प्रभु जी उन लोग and पापी they हैं may कि come and get regenerated by your Spirit ताकि उन लोग आपकी पवित्र आत्मा से वापस दोबारा जीवित हो सके प्रभु by जी trusting in the one true gospel.
और एक सत्य परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने के द्वारा Oh Lord, I pray that thou will work a miracle in their life. हम प्रार्थना करते हैं लोग इसमें को चमत्कार करिए प्रभु जी। We pray for all our brothers and sisters who are saved. हम प्रार्थना करते हैं उन हर एक भाई बहनों के लिए जो उद्धार पा Oh चुके Lord, हैं। may their faith be grounded and rooted in the word. ताकि उन लोगों के जो विश्वास है ताकि उन लोग जड़ से मजबूत हो सके प्रभु That जी they आपके may वचन में। never be shaken by any false doctrine. ताकि कोई भी गलत शिक्षा से ताकि उन लोग ना हिल सके प्रभु जी। Bless them, O उन लोगों Father. को आशीष करे परमेश्वर पिता। Strengthen them, O उन लोगों को God. सामर्थ्य भर प्रभु जी। Heal their sicknesses and diseases. ताकि हर एक रोग बीमारों को चंगाई दे परमेश्वर Lord, if पिता। there is anybody struggling with some physical ailment, अगर कोई प्रभु जी रोग बीमार से यहाँ पे उन लोग उछल रहे हैं परमेश्वर पिता। we pray that thou will touch them and heal them, O हम God. प्रार्थना करते हैं स्पर्श करके उन लोगों को चंगाई दे प्रभु Heal जी। them from their fevers, उन लोग के बीमार से उन लोग के बुखार से पिता उन लोग को from चंगाई their दे। cold and diabetes and pressures. हर एक रोग बीमार से डायबिटीज प्रेशर से People who are not able to sleep well, grant them rest, O God, in the सही से night. सो नहीं पा रहे उन लोग को अच्छा रेस्ट दे प्रभु जी। O God, anybody having financial difficulties, meet their needs, O God. अगर किसी के पास आर्थिक समस्याएं हैं प्रभु जी उन लोगों को प्रोवाइड करे प्रभु जी। Those who are looking for job, we pray that thou will provide them good job, O अगर Father. कोई काम के लिए देख रहे हैं परमेश्वर पिता उन लोगों को काम दे प्रभु जी। Oh God, bless your children. हम प्रार्थना करते हैं आपके बच्चे को आशीष दे प्रभु जी। Thank you for hearing our prayer. आपको धन्यवाद परमेश्वर पिता हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए। In Jesus' mighty name we pray. यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं। And all God's people said, आमेन। and again,